ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम है सीए इंद्रेश गांधी और मैं आपको सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर का लॉ पढ़ाता हूं ultimateca.com के ऊपर। दोस्तों, ये हमारी नंबर 1 टीम है सीए फाउंडेशन में इट बी सीए इंटर। ये हमारी टीम है बेटा, जहां पर आपको एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल मैनर में सारी चीजें आपको कवर कराई जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं सीए इंटर की बात करूं और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन की बात करूं तो बहुत ही हमारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे इस बार के जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो मई 25 वाले अटेम्प्ट के रिजल्ट्स होंगे वो भी इस तरीके से बहुत ही एकदम धमाकेदार, एकदम प्यारे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द एमटीपी 2 सेशन। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपको जनवरी बोल रहा हूं, मई 25 अटेम्प्ट के एमटीपी को सॉल्व करवाने वाला हूं। आरटीपी का सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। आरटीपी मई 25 बाय सी इंद्रेश गांधी, अगर आप देखेंगे तो आपको लॉ की आरटीपी मिल जाएंगी। ये सीरीज 2 की एमटीपी है बेटा, जो मैं यहां पर पोस्ट करने जा रहा हूं, है ना। तो इसके अंदर हम लोग पूरे एमटीपी का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। कम से कम समय के अंदर मैं एमटीपी का डिस्कशन करते हुए चलूंगा, ताकि आपका ज्यादा समय भी ना जाए और क्विकली आपकी एमटीपी भी एक बार देखकर हो जाए। ठीक है, चलो ओके सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पेपर तीन घंटे का होता है। 100 मार्क का पेपर है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 के अंदर एमसीक्यूज होते हैं, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज दोनों होते हैं। और इसके साथ साथ पार्ट 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओके चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। केस सिनेरियो 1 को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो केस सिनेरियो 1 को समझते हैं। Brilliant Company Limited has an existing paid up share capital of 100 crore. Over the past few years, it has already issued sweat equity shares worth rupees 20 crore. मतलब 20% already issue कर चुके हैं। Now it plans to issue additional sweat equity shares of 10 करोड़। सर नहीं कर सकते 10 करोड़, पर 5 करोड़ चाहे तो कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम 25% ही हो सकता है। The board resolution was passed and gave the approval for allotment. Mr. Anuj and Anutar siblings and Anitar siblings who jointly holds 500 shares in AB company. किसके अंदर बोलो? AB company. The share certificate was issued solely in name of Anita's name. Mr. Anuj sent an email to company requesting issuance of additional share certificate in his name, as he is a joint holder of the shares. In this request, he emphasized its equal ownership and needed for the documentation of reflecting the same. However, in response, company denied the request and stating that as per the company's policy and applicable regulation, separate share certificate shall be not be reissued in his name. Okay, agla. The company conveyed the 5th AGM on 12th of September 24 at registered office. Notice for same was served on 20th of August. 21 clear days आराम से हो रहे हैं क्या? हाँ सर, 21 क्लियर डेज मुझे थोड़े कमजोर तरीके से नहीं हो रहे, 31 अगस्त है। बट ड्यू टू सर्टन टेक्निकल एरर्स द नोटिस वाज डिलीवर्ड वाया ईमेल, remained undelivered to 3% of members who were to attend the AGM. Here, the members who were unable to attend the meeting were desperate to hold AGM again, as the number of members who were not able to attend AGM was quite big. The company was issued unconditional apologies to the members who were not able to attend the meeting. Okay. A shareholder, Mr. Datta, could not attend the meeting, wanted to inspect the minutes of meeting. He visited the company's registered office on 16th of September 24 and was allowed to inspect the meeting for 2 hours. Later, he requested a physical copy of minutes on 17th of September along with the prescribed fees. Company has declared the dividend at the rate 15% on equity shares ending 31st March. However, company has not made adequate profits during the financial year 31st March. Company has declared dividend of 10% in financial year 24, and company wants to declare dividend 15% out of free reserve. देखो, यहां पर कंपनी ने एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं किए, ऐसे बोल रहे थे। द रेजोल्यूशन ऑफ द सेम वाज पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहां पे आपको क्या करना है? एमसीक्यू सिलेक्ट करना है 1 से लेके 5 तक, जो यहां पर बोला गया है। अब कंपनी प्लान्स टू इशू एडिशनल स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ 10 करोड़। तो आपको यहां पर क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखो, कंपनी कैन इशू ओनली 5 करोड़ एंड रिमेनिंग 5 करोड़ नेक्स्ट ईयर। कंपनी हैज एग्जॉस्टेड द लिमिट, नहीं,
कंपनी कैन इशू 5 करोड़ मोर टू अलोंग विद द प्रिस्क्राइब लिमिट। आंसर इसका सी रहने वाला है सर, क्योंकि मैक्सिमम 25% ऑफ कितना पेड अप शेयर कैपिटल जितना आप यहाँ पे किसको इशू कर सकते हो सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, बराबर है ना? यस सर, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी रिफ्यूज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू अनुज being a joint shareholder of 500 shares. Is it Anuj right to get the share certificate issued in his name? तो क्या ये अनुज का राइट है क्या, मुझे एक बात बताइए। तो इसका जवाब है नहीं सर, ये कोई अनुज वगैरह का राइट नहीं है सर। किसी एक जॉइंट शेयर होल्डर को भी अगर सर्टिफिकेट मिल गया ना, तो क्या इट विल अमाउंट टू डिलीवरी? क्या हाँ सर, इट अमाउंट्स टू डिलीवरी। ठीक है, ओके। तो देखो, यस द शेयर होल्डर मीन अरुज गेट द राइट, नहीं सर, नो। In this case, joint holder company can issue one share certificate and delivery of share certificate to one of the joint holder will amount to delivery to all of them। यानी कि इसका आंसर पक्के से बी ही रहने वाला है। अब देखो अगला वाला पॉइंट, ड्यू टू टेक्निकल एरर इन द सॉफ्टवेयर the notice of the AGM remain undelivered to the few members. What will be the impact on the proceedings of meeting? तो impact इसका क्या होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। तो क्या इसका impact रहने वाला है, यहाँ पर सवाल बनता है। मुझे बताओ, अगर नोटिस ऑफ मीटिंग किसी व्यक्ति को गलती से ना मिले तो क्या वो प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं क्या? नहीं सर, वो प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो आंसर ढूंढो। द मीटिंग नीड्स टू बी रीशेड्यूल, ना मुन्ना ना। The unintentional failure or non-receipt of entitled members does not invalidate meetings proceedings। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। ओके, अगला फोर्थ, the company wants to declare the dividend at the rate 15% out of free reserves, choose the correct statement। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। मुझे बताइए, क्या कंपनी यहां पर, चलो देखो सर, कंपनी क्या 15% को डिक्लेयर कर सकती है क्या सर? इन एडिक्वेट प्रॉफिट से लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट है, तो कंपनी चाहे तो 15% का डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होता है। तो देखो, कंपनी हैज टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड, और ये वाला कंपनी शुड नॉट एक्सीड डिविडेंड पेड इन द ईयर एंडेड 34 ऐसा 24 ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इफ इट हैज इनकर्ड द लॉसेस, नहीं। कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड 15% इन स्पाइट ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स इफ इट फुलफिल्स द कंडीशन प्रिस्क्राइब इन कंपनीज एक्ट अलोंग विद रेलेवेंट रूल्स। याद है वो 4 कंडीशन है बेटा रूल्स के अंदर दी हुई है। पहला क्या, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे बोलो ना सर, फिर वो टंकी में से पैसा निकालना है ना, जो कितना, वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस करंट ईयर लॉस, ऐसा कुछ तो भी अपन ने पढ़ा था। अरे याद आ रहा है कि आपको ऐसी 3 कंडीशंस आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फिर आखिरी में विड्रॉ करने के बाद अमाउंट जो है वो 15% कम से कम होना चाहिए क्या? यस सर। फिर 5th पॉइंट, based on the provision of Companies Act, by which date company can legally furnish to Mr. Datta copy of minutes of meeting। तो 7 दिनों के अंदर जब से उन्होंने अप्लाई किया है वहां से आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपीज देना पड़ता है ना? यस सर, 7 डेज के अंदर आपको देना पड़ता है। डन है क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? बोलिए यस। चलो, क्या हम लोग आगे बढ़े? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े क्या, है ना? यस सर, चलिए आ जाओ, ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों। मैं अगर बात करूं अब केस स्टडी 2 के ऊपर हम लोग चलेंगे। केस स्टडी 2 को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार एलएलपी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। The LLP was initially established with 3 partners, Apeksha, Rajesh and Riverview Limited, body corporate. Apeksha and Rajesh are designated partners, with Apeksha being a resident of India. ये तो सही है। Riverview Limited has appointed Anil, an individual, as its nominee to act on this behalf. After few days, Rajesh decides to retire, leaving Apeksha in Riverview Limited as remaining partner. Due to administrative oversight, Star LLP continued its operation without appointing new partner. This situation persists for the 7 months, with Apeksha being aware of the reduced number of partner. During this period, Star LLP enters into a several contract and incurs several financial obligations। पर बेटा 2 पार्टनर से नीचे तो नहीं गया है ना? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फॉलोइंग आपको डिसाइड करना है कि एलएलपी के आंसर्स यहाँ पर क्या रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। पहला, given Rajesh retires, Star LLP continued only with Apeksha and Riverview Limited. Should LLP
व्हाट शुड स्टार एलएलपी हैव डन विद इन 6 मंथ्स टू कंप्लाई विद द एलएलपी एक्ट। तो अगर इनको कंप्लाई करना है तो क्या यहां पर करना चाहिए, बोलो जल्दी से। सर कुछ नहीं, यहां पर इन्होंने एक डीपी को अपॉइंट करना है, क्योंकि देखो आपके पास अब एक ही डीपी बचा है, कम से कम 2 डीपी होना चाहिए, पार्टनर तो 2 है पर डीपी केवल और केवल एक ही बचा है ना। यस सर, डीपी केवल और केवल एक बचा है, ठीक है। ओके सर, देखो यहां पर तो डिसॉल्व कर दो एलएलपी को ना, कंटिन्यू ऑपरेशन विद 1 डीपी ना, appoint at least one BC which should be foreign company, या appoint at least one more partner should also be a DP, है ना। as every LLP should have at least 2 DP, इसलिए बोल के रखा है कि आप क्या करो सर, एक और जन को DP अपॉइंट करो या अनिल को ही आप DP अपॉइंट कर दो तो भी चल जाएगा। According to LLP, choose the correct statement in relation to whom must be the resident of India। तो मुझे बताइए कौन, तो कम से कम एक इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए सर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, 8th। अब देखो 8th वाला पॉइंट, in the given scenario, suppose Riverview Limited also leaves LLP and LLP continues business for more than 6 months with only one partner who is personally liable for the obligation। तो अब बची कौन, अपेक्षा बची। तो अपेक्षा बची तो जिम्मेवार भी कौन रहेंगी, केवल और केवल अपेक्षा रहने वाली है 8 महीनों के बाद। क्या कहा ना, बोलो सर, केवल और केवल अपेक्षा रहने वाली है 8 महीनों के बाद। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आई क्या, है ना। यस सर। चलिए 9th वाला, अब हम लोग आ जाएंगे केस सिनेरियो 3 के ऊपर। ओके चलो, केस सिनेरियो 3 यहां पर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ग्रीनवुड लिमिटेड इज एस्टैब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन केरला ऑन 15th of 24। the Central Food Safety Authority issued comprehensive notification containing the following requirement: all the new processed units must employ quality assurance from officers for each processing line. The managing director of the company is authorized to appoint QAOs with the appointment letters to be issued within 30 days from selection. Each QAO must obtain mandatory certificate from Food Safety Regulatory Board within 21 days from appointment. The facility must install safety equipment by 1st of March 24. Monthly compliance report must be submitted from 1st to 7th of every month. On 10th of February, while implementing these requirements, GWO faced the following situation. A selected QAO candidate was found submitting forged experience certificate. Another QAO, after appointment, failed to maintain safety protocols leading to minor contamination. ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है कहीं पे। On 21st day of certification of one of the QA fell on 29th February 24 when certificate office was closed on local holiday followed by weekend. The contamination incident violated Food Safety Act and Public Health Act. अब सवाल बनता है रिगार्डिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर्स अथॉरिटी ओवर क्यूओ विच पावर इज अवेलेबल विदाउट एक्सप्लिसिट मेंशन। तो जब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है क्यूए को तो वो क्या कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है बेटा, ऐसा जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है। बोलो ना, मतलब पावर टू अपॉइंटमेंट के साथ ही क्या आता है, पावर टू सस्पेंड या पावर टू सस्पेंड एंड डिसमिस दोनों आते हैं क्या? बिल्कुल सर, मतलब क्या बोल के रखा है, पावर टू सस्पेंड एंड डिसमिस दोनों आते हैं विद द अपॉइंटमेंट जो अवेलेबल होते हैं विद पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब देखो, अगर क्यूएओ सिलेक्ट हुआ है 25 जनवरी को तो लास्ट डेट ऑफ इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? तो देखो मैंडेटरी 21 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, सर्टिफिकेट यहाँ पे 21 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट आना चाहिए, है ना। ओके क्या आना चाहिए? 21 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट आना चाहिए सर। इसके अलावा अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर को आपको 30 दिन के अंदर देना है, तो 25 जनवरी को जा रहा है। तो देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए इसके, और 24 डेज और ऐड कर लो। मतलब सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 10th का आंसर क्या होगा, 24th ऑफ फरवरी तक सर 30 दिन यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। ओके अगला, रिगार्डिंग कंटेमिनेशन इंसिडेंट वायलेटिंग 2 एक्ट्स विच करेक्ट लीगल पोजीशन। तो सर अगर कोई 2 एक्ट को
क्या कहा मैंने, बोलो। अगर कोई दो एक्ट को यहाँ पर वॉयलेट होता है तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जा रहा है, कंपनी जो है ना, ध्यान रखना, पनिश तो एक ही इसमें होंगी, हो सकता है वो प्रोसिक्यूट दोनों एक्ट में हो, मतलब दोनों एक्ट में उसका ट्रायल चले, बट उसको जो फटका पड़ेगा वो केवल और केवल कितने एक्ट में पड़ने वाला है, केवल और केवल एक एक्ट। तो देखो, मेजर वायलेशन नहीं, लॉ अप्लाइज नहीं, सी का आंसर होगा कि इसको पनिश आप केवल और केवल एक बारी ही करने वाले हो। क्या? यस सर, डन है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई है क्या? राइट, चलिए सर, अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट के ऊपर और अब हम लोग देखेंगे कुछ इंडिपेंडेंट केस सिनेरियोस के सवाल जो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, आ जाओ। 22 नंबर की चीजें ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। अब एक एक मार्क के या दो दो मार्क के जो सवाल यहां पर दे के रखे उसको अपन लोग अभी देखते हुए चलेंगे। द कंपनी डायरेक्टर्स आर कंटेम्पलेटिंग टू डिक्लेयर इंटरियम डिविडेंड in the last week of July 24, but company has incurred losses during current financial year up to the end of quarter. It is to be noted that previous financial year में इस प्रकार से इन्होंने डिविडेंड बांटा है। तो लेटेस्ट 3 ईयर ये है बेटा, जहां पे 33 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, 11% हो सकता है। यार ये तो मतलब अपने को क्या लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के। बस मैंने वही किया। अब जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके एवरेज लेने पड़ते हैं, तो अपन ने उसका एवरेज निकाल के 11% निकाल लिया। अगला देखो, एंट्रेंचमेंट एनहांस प्रोटेक्शन एबीसी लिमिटेड है, मतलब पब्लिक कंपनी है ना, एबीसी लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी विलिंग टू इंसर्ट द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट। मैं कहता हूं बेटा ये सवाल ही गलत है। तो इन्होंने एबीसी क्या देना चाहिए था, प्राइवेट लिमिटेड देना चाहिए था। इन्होंने क्या देके रखा है सर, एबीसी लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी होती है, पर आगे ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में आपको क्या लगता है, ऑल मेंबर्स का कंसेंट लगता है। सर अगर ये पब्लिक कंपनी होती है या ये आगे नहीं दिया होता, सिर्फ लिमिटेड बोला होता, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन करते। अब यहां पर आपको ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। 13 का आंसर क्या होगा, बोलो, सी होगा। 14, Mr. X, a resident in India for less than 182 days in the financial year 22-23. He has arrived in India on 1st of April 23 to conduct business and intends to leave the business on 30th of April 24. It plans to depart India from 30th on June 24. 30th of June 24. What is X residential status for 23-24? Under the FEMA, how many days did X stay during the financial year 23-24? तो ये बोल रहा है 23-24 के अंदर उसका स्टेटस क्या रहने वाला है, उसका स्टेटस रेसिडेंट रहने वाला है, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आया। भले वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं था, तो फिर भी लेकिन क्या ये माना जाएगा क्या, क्योंकि ये किसके लिए आया बेटा, बिजनेस करने के लिए आया। समझ रहे हैं क्या बात को? और अगर ये बिजनेस करने के लिए आया और पूरे 365 दिन वो इंडिया में रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। ओके, अगला। आफ्टर द 5 years of stay in USA, Mr. Amar came to India at his paternal place in New Delhi on October 5, 22 for purpose of conducting business with his 2 young brothers Radesh and Somesh। मतलब ये क्या हो गया, PRI हो गया, जब वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आया। And contributed 10 lakh as capital. Simultaneously, Amar also started proprietary business of selling artistic brassware jewelry procured directly from manufacturer based at Moradabad. Within 2 months after his arrival from USA, Mr. Amar established branch of his proprietary business in USA. अब ये भी एक PRI मानी जाएंगी। You are required to choose the appropriate option of residential status of Mr. Amar and his branch फॉर कंसिडरिंग द प्रोविजन। दोनों बेटा क्या माने जाएंगे, दोनों यहां पर PRI माने जाएंगे। दोनों क्या माने जाएंगे, बोलो जल्दी से, दोनों PRI माने जाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, दोनों PRI। हाँ ये देखो, बोथ आर PRI, यानी कि इसका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, इसका आंसर सी रहने वाला है। गॉट इट? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? सभी लोग बताइए, यहां पर सर अपना क्या कंप्लीट होता है, यहां पर अपना पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, अब हम लोग यहां पर चलेंगे पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो क्या कह रहा है यहां पर। वर्धा लिमिटेड, अ टेक्सटाइल कंपनी, हैज इशूड 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन 2015 विच आर नाउ ड्यू फॉर रिडेम्पशन इन 2025, जो अभी ड्यू फॉर रिडेम्पशन है।
द कंपनी हैज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 3 करोड़ एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ 2 करोड़, मतलब कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग है 3 करोड़ की और 2 करोड़ यानी कि टोटल 5 करोड़ रुपए की। यार पे सर क्या है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग है। प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने के, 5 करोड़ रुपए के। बीइंग एन एक्सपर्ट यू आर आस्क्ड टू रिकमेंड द पॉसिबल ऑप्शन that management can avail regarding redemption of shares according to the provision of Companies Act। तो आपको बोला गया है जरा इन्हें सजेस्ट करो कि किस तरीके से रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रिडेम्पशन किसके ऊपर चलता है बेटा, सेक्शन नंबर 55 के ऊपर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चलता है क्या? यस सर। अब ये क्या कहता है कि रिडेम्पशन के जो सोर्सेज है वो दो हो सकते हैं। जैसे कि आप रिडेम्पशन को क्या कर सकते हो सर, आप रिडेम्पशन को एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर डिविडेंड है यानी कि जिसको फ्री रिजर्व्स कहते हैं उससे भी बांट सकते हो, या दूसरा आप फ्रेश इशू भी कर सकते हो क्या? हाँ सर, आप यहाँ पे फ्रेश इशू भी कर सकते हो। तो अगर आपको फ्रेश इशू करना है तो आप नए प्रेफरेंस शेयर्स या नई इक्विटी शेयर्स को मार्केट में लाओगे और उसके जगह क्या पुराने सोर्सेस को इशू कर दोगे क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कर दोगे। समझ पा रहे हैं आप बात को? यस। अब देखो सर, जब आप यहां पर क्या करते हो, जब आप फ्री रिजर्व में से या प्रॉफिट्स में से आप यहां पर रिडेम्पशन करते हो तो इस केस के अंदर आपको CRR बनाना पड़ता है। यहां पर आपको CRR नहीं बनाना पड़ेगा सर। CRR नॉमिनल वैल्यू जितना बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है बोलो? नॉमिनल वैल्यू जितना CRR को आप क्रिएट करते हो क्या? यस सर, CRR को क्रिएट करते हो। समझे आप बात को? सर CRR का केवल और केवल एक यूज होता है और वो है बोनस, और इसको सेम सैनिटी में मेंटेन करना पड़ता है जैसे ये एक पेड अप शेयर कैपिटल हो। मतलब इसके रिडक्शन के लिए सेक्शन नंबर 66 के गुहार लग जाएंगी इन केस अगर इसको रिड्यूस करने की बारी आई तो, ठीक है। पर एज सच CRR वगैरह कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर से कर रहे हो तो आपको बताना है कि ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनी के पास। कंपनी चाहे उन दोनों ऑप्शंस का फायदा ले सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Green Limited, a power generating company, attracted numerous investors due to strong growth potential. Mr. Arjun लिखना होगा पर अर्जू हो गया। One of the investor purchased a significant number of shares in Green Limited, expecting regular returns in form of dividend. Over the years, Green Limited performed well and consistently declared dividends. However, in 23-24, despite of reporting profits, board of directors decided not to distribute dividends, citing to reinvest earning for future expansion. Seeing this, Arju argued that as a shareholder, he has absolute right to receive dividend. He believed that since the company was in the profitable state, dividend could be mandatorily be distributed. He raised his concern at the annual general meeting, questioning the board's decision. Looking in the given scenario, assess the argument of Arju in the light and support। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है क्या यहां पर डिविडेंड को डिक्लेयर करना मैंडेटरी चीज है क्या? आपको इसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 235 के अंदर। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरियम डिविडेंड। आप यहां पर लिखोगे डिविडेंड मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स विदर कैश इन काइंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दी पर्पस। समझे आप बात को? यस। फिर आप यहां पर बोलोगे इसी का मतलब होता है कि डिविडेंड के पास यहां पे, सॉरी डिविडेंड बोल रहा हूं, शेयर होल्डर को यहां पर कोई राइट नहीं होता पैसे को या डिविडेंड को रिसीव करने का। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो यहां पर फिर उसको राइट मिलता है उसको रिसीव करने का। समझे आप बात को? यस। फिर आपको यहां पर बोलोगे कि कंपनी जो है वो डिविडेंड कर सकती है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या कंपनी जो है वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या जो मनी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है उससे भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा फिर आपको यह बोलना पड़ेगा कि डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और शेयर होल्डर इसको अप्रूव कर सकते हैं। शेयर होल्डर के पास राइट होता है इसको कम करने का, पर बढ़ाने का राइट इसके पास होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। फिर आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि एक जो कंपनी है ना, इनके पास ये एट द कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, कहां पर कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है रिजर्व के अंदर, ये एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा।
मतलब अगर कंपनी 100% अमाउंट को अपने प्रॉफिट में फ्यूचर के लिए सेव करना चाहती है, रिटेन करके रखना चाहती है, बिल्कुल बिल्कुल रख सकती है। ये प्योरली प्योरली कंपनी की चॉइस है। फिर आपको बताऊंगे, आप यहां पर लिखोगे कि जो अर्जुन ने कहा है इसका वैलिडेशन बिल्कुल गलत है। सर प्रॉफिटेबल हो या कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करना या नहीं करना ये प्योरली किसकी चॉइस है? ये प्योरली कंपनी की चॉइस है। समझ में आया क्या बात है? बस इतनी चीजें अपने को लिख के आना है। ओके, अगला। Analyze the following situation, comment upon the legal validity of transaction in the light of FEMA 1999. अब देखो, John, a foreign national not of Indian origin, wants to buy agricultural land in India. आपको बताए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के द्वारा ऐसे ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। अब एक एनआरआई वांट्स टू ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद इंडियन बैंक यूजिंग फॉरेन करेंसी, ये हो सकता है सर। एक फॉरेनर एफसीएनआर अकाउंट है ना, और ऐसे अलग अलग अकाउंट को ऑपरेट या चालू कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स को ओपन कर सकता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉर्म इन दी कंपनी, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप जिसका बिजनेस है किसके अंदर, रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल लैंड से अंदर, या फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ऐसे इसमें ये कंपनीज को प्रोहिबिट किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो जल्दी से मुझे? प्रोहिबिट किया जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? और इसके लिए आप यहां पर बोलोगे कि इस केस के अंदर सर यहां पर एग्रीकल्चरल लैंड जॉन क्या बाय कर सकता है क्या? नहीं सर, जॉन यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड बाय नहीं कर सकता, ऐसा यहां पर आपको बोलना पड़ेगा। डन 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 डन। बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए सर अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन 2 का ए पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या कह रहा है देखो। अ कंपनी इंटेंट्स, क्या बोल के रखा है यहाँ पे? अ कंपनी इंटेंट्स टू होल्ड इट्स एजीएम ऑन द शॉर्टर नोटिस ड्यू टू अर्जेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट. However, some shareholders argued that their larger shareholding should grant them greater influence in approving shorter notice. Based on the provision of Companies Act, clarify whether their argument is valid, substantiate why the number of shareholders matters more than the number of shares they hold in such cases. ऐसा यहां पर बोला गया है कि आपको आर्ग्यूमेंट करके बताना है कि क्यों ऐसा होता है। तो देखो सर, सिंपल सी बात क्या है सर कि जनरल जो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो एजीएम आप बुलाते हो ना, ये एजीएम के लिए आपको 21 क्लियर डेज का क्या देना पड़ता है? 21 क्लियर डेज का आपको नोटिस भिजवाना पड़ता है सर, ऐसा यहाँ पर बोल रखा है। कितना? 21 क्लियर डेज का नोटिस आपको भिजवाना पड़ता है सर। पर हम इससे चाहे तो क्या हम शॉर्टर डेज की नोटिस भी हम लोग दे सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, आप शॉर्टर डेज की भी नोटिस दे सकते हो। इसकी दो कंडीशंस होती है। शॉर्टर डेज की नोटिस आप कब दे सकते हो? जब 95% ऑफ मेंबर्स आपको राइटिंग में दे। क्या दे बोलो? 95% ऑफ मेंबर्स आपको राइटिंग में दे कि ठीक है आप शॉर्टर नोटिस दे दो। और इसके अलावा अगर अदर जनरल मीटिंग्स है, जैसे कि अगर ईजीएम वगैरह की बात है बेटा, तो इस केस के अंदर आपको क्या लगता है? 95% ऑफ मेंबर्स, 95% ऑफ मेंबर्स का यहां पर क्या लगता है? मेंबर्स की यहां पर अगेन वोटिंग लगती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगती है। इसलिए यहां पर क्या बोल के रखा है? इसलिए इसका मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ जब शेयर होल्डर्स एग्री करते हैं ना, तब जाके सर ये चीज यहां पर आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आती है। तो मुझे बताओ यहां पर जो शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उनके पास क्या होनी चाहिए? ज्यादा राइट होना चाहिए। क्या ये वैलिड है क्या? नहीं सर, क्योंकि यहां पर 95% मेंबर्स की बात की जा रही है, ना कि उनके शेयर होल्डिंग्स के बारे में। समझना है ना, उनके शेयर्स का अप्रूवल नहीं लेना है अपने को, उनके होल्डिंग्स का अप्रूवल नहीं लेना है, टोटल मेंबर्स का अप्रूवल लेना है, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, आ जाओ सर, क्या बात है। आइए अब अगला देखो, क्या अच्छा सवाल था इससे पहले वाला। वन एक्स लिमिटेड, a technology based company has a paid up share capital of 40 करोड़. Company issued a sweat equity share worth रुपीस 1 करोड़, 8 करोड़ है ना। मुझे बताओ 25% ऑफ ये कितना होता है? 10 करोड़ रुपए होता है सर। ठीक है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए ऑलरेडी इशू हो चुका। नाउ ये प्लान कर रहा है कि मैं एडिशनल इशू करना चाहता हूं 7 करोड़ का।
आपको डिस्क्राइब करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स को, किसको ये इशू किया जा सकता है, और ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट क्या है टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर, एंड डज व्हाट डज द पर्पस ऑफ इशू एंड एग्जिस्ट द लिमिट। अगर सर ये लिमिट से ऊपर जाता है तो इस केस के अंदर मतलब अगर क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात, स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को इशू किया जाता है क्या? यस। किस में इशू किया जाता है? एक तो डिस्काउंट पे या अदर देन कैश के लिए इशू किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, ये बेसिकली एक रिवॉर्ड की तरह होता है जो कंपनी के एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को दिया जाता है उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्निकल एडवाइस या अदर वैल्यूएबल सर्विसेज के लिए। सर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, ये परिपासु क्या होते हैं, बोलो जल्दी से, ये परुपासु होते हैं विद द अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या कहा मैंने, बोलो, विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये एब्सोल्युटली परिपासु होते हैं, मतलब कि सेम स्टैंडिंग में होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टैंडिंग में होते हैं। अब देखो सर, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है यहां पर? तो अगर मैं एनुअल लिमिट की, एक साल की मैं अगर बात करूं, तो आप कितना इशू कर सकते हो? आप 15%, क्या कहा मैंने, बोलो, आप 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 5 करोड़ का इशू वैल्यू, विच एवर इज, एक बात ध्यान रखना, 5% ऑफ इशू वैल्यू विच एवर इज, यहां पर आप क्या करोगे, विच एवर इज हायर की लिमिट है ना, समझना, विच एवर इज हायर की लिमिट तक आप इशू कर सकते हो। इसके अलावा जो ओवरऑल लिमिट होती है वो होती है 25% की ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां पर इक्विटी तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 25% की लिमिट होती है। अब इस केस के अंदर लिमिट तो है बेटा 10 करोड़ की, 8 करोड़ ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, मतलब सर अभी बचा कुचा कितना इशू कर सकते हैं? 2 करोड़ कर सकते हैं, पर कंपनी तो सर ज्यादा करना चाहती है, तो इस केस के अंदर कंपनी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अब अगर कंपनी को फिर भी करना है तो कंपनी को अपने ऑथराइज कैपिटल को इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल को, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने, बोलो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। डन डना डन डन। ओके सर, अगला क्वेश्चन बड़ा इजी। CCTV recording of incidents can be considered as a document. Explain what you understand by the word document and how will you justify the answer as per the provision of General Clauses Act. तो देखो, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैटर जो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब अपॉन कोई सर्कमस्टांसेस यूजिंग लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, है ना, जो वे एक ही इंटेंशन के साथ कि अपने पास इसकी क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कहता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट ये कहता है कि सर ये मतलब यहाँ पर मटेरियल को इंक्लूड नहीं करता, ये अलग अलग मीन से यहाँ पे चीजें हो सकती है क्या? बिल्कुल। जैसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैटर आते हैं, रिकॉर्ड आते हैं, सब्सटेंस आता है, मीन्स आता है। तो अब सवाल बनता है कि अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है कोई इंसिडेंट्स का, तो माना ये रिटर्न नहीं है, बट फिर भी इसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ये मैटर को क्या कर रहा है बच्चों, रिकॉर्ड कर रहा है। और क्या आप इसको लीगल प्रोसीडिंग्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो क्या? हाँ सर, आप इसको लीगल प्रोसीडिंग्स की तरह बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई क्या? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। यस, चलो सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। टू प्रिवेंट एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रोल अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, डिस्क्राइब विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ कंपनीज एक्ट 2013 इम्पोजेस लिमिट्स एंड रेगुलेट्स वोटिंग पावर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। बेटा ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है डीवीआर के ऊपर, है ना। देखो, जनरली डीवीआर के ऊपर एक डायरेक्ट सवाल आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इशूइंग डीवीआर, बट ये एक मुझे ऐसा सवाल मिला है जो इतने समय में, इतने सालों में मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने अच्छा पूछा है। बाकी सब तो वही घिसे पिटे, वही नॉर्मल इधर से चिपका चापकी वही सवाल पूछते रहते हैं लोग, पर ये सवाल ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने दिमाग से बनाया है करके। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को कंट्रोल करने के लिए एग्जाम्पल की मदद से समझाए कि किस तरीके से कंपनीज एक्ट में लिमिट या रेगुलेशंस होते हैं विद इशूइंग डिफरेंशियल राइट्स। मतलब ये डीवीआर के बारे में बात कर लिया। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये अलाउ करता है डीवीआर को इशू करने के लिए। सबसे पहले आपको ये बताना है, आप बोलोगे क्या वाली चीज? सबसे पहले आपको बोलना है कि एओए के अंदर परमिशन होना चाहिए। दूसरा आपको बोलना है कि जो वोटिंग राइट्स रहेंगे डीवीआर के ना, वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स।
मतलब जो टोटल वोटिंग राइट्स है सारे डीवीआर और नॉर्मल इक्विटी को मिला के उसका 74% से ज्यादा डीवीआर का होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होना चाहिए करके। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है, जैसे कि अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एकदम फाइल्ड होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आपको परमिशन लगता है। फिर सर इसके बाद बोल के रखा है कि कंपनी का कोई किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसके अंदर? डिविडेंड के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर और प्रिंसिपल के अंदर। प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन के अंदर। समझ में आ रहा है कि आपको बातें? ये सब चीजें। फिर आपको ये भी, इसका मतलब क्या बोला सर? 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 26% जो है वो ऑर्डिनरी इक्विटी वालों के पास रहना चाहिए क्या? यस सर, ताकि एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहे। देखो क्या बोला, डीवीआर के पास 74% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए टोटल वोटिंग पावर। इसका मतलब क्या बोला? इसका मतलब जो नॉर्मल है ना, जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए? 26% ऑफ टोटल वोटिंग राइट होना चाहिए। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो 2000 शेयर होल्डर्स है बेटा, इन्होंने एक जो एग्जांपल लेके बताया वो 2000 या कुछ ऐसा ही लिया था, हाँ 2000 टोटल शेयर होल्डर्स है। अब इसमें से सवाल बनता है कि कितना डीवीआर वाले होने चाहिए और कितना यहां पर ये होने चाहिए, ठीक है ना, कितने यहां पर मतलब नॉर्मल वाले होने चाहिए। तो इनका कहना है यहां पर, जैसे देखो अगर रेगुलर इक्विटी शेयर होल्डर 600 है, ठीक है, तो डीवीआर वाले कितने होंगे? जो 400 शेयर होल्डर होंगे उनके पास यहाँ पे 2 वोट्स होंगे, मतलब ईच होल्डिंग 2 वोट्स। तो ऐसे केस के अंदर 800 वोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? 800 वोट हो जाएंगे। तो इसलिए टोटल यहाँ पे 1400 वोट्स यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। अब अगर 74% का रूल लगाएंगे तो इसके अंदर 1036 वोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके पास? डीवीआर के पास। किसके पास बोलो? डीवीआर के पास। इसलिए देखो, डीवीआर जो कलेक्टिवली होल्ड करता है 800 शेयर्स ना, जो बिलो है 1036%, तो ऐसे केस के अंदर सर डिफरेंशियल वोटिंग पावर से क्या डीवीआर वालों के पास एक्सेस राइट आ गया क्या? नहीं सर, एक्सेस राइट नहीं आ गया, ऐसा यहां पर इनका कहना है। मतलब सर मुझे एक बात बताइए, अच्छा ये हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो। देखो मैंने क्या कहा, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं। टोटल आपके 2000 शेयर होल्डर्स है, जिसके अंदर आपके नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स है वो कितने हैं और डीवीआर वाले भी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन ने देखा कि 600 शेयर होल्डर्स है जिनके पास 600 वोट है, और 400 ऐसे शेयर होल्डर है जो 2 इसको वोट करते हैं, मतलब जो क्या है यहाँ पर ईच होल्डिंग 2 वोट्स। तो ऐसे केस के अंदर क्या हो गए? टोटल 800 वोट हो गए। समझ रहे क्या बात को? तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया? डिफरेंस किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये सबको ऐसी की तैसी करो इसकी। अब ध्यान दो, आप क्या, आप नॉर्मली ऐसे समझो कि सर 1000 वोट्स है किसी कंपनी के अंदर, तो कम से कम समझना बात को, कम से कम जो यहां पर अब 726% मतलब 260 जो है ना, वो मिनिमम 260 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहने चाहिए। और सर इसके अलावा अब कितना बचा? 740 बचाएगा। तो 740 जो वोट्स है ना, 740 और लेस वोट जो है ये किसके पास जा सकते हैं? डीवीआर के पास जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ताकि डीवीआर वाले मिलके ही बेटा इन लोगों को पेलना दे, मतलब क्या, एसआर पास ना कर दे। इसलिए अपन ये 74% वाला रूल लेते हुए चलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, ठीक है ना, कि पूरा कंट्रोल डीवीआर वालों के पास ना चले जाए, बस इतना इसका मतलब है बेटा। गॉट इट एवरीवन? ओके चलो सर, बी वाला पॉइंट अब देखो। Mr. Dan, an Indian citizen, decide to start a software development company and opts for OPC. He appoints his friend Mr. Rohit as a nominee at the time of incorporation, following all requirements. After 2 years, Rohit wants to withdraw his nomination. Mr. Dan then nominates Akram in his price and submits the necessary forms to ROC. Considering the legal provision of OPC, analyze the following. What is the legal process must be followed when nominee withdraws the consent? तो मुझे बताइए, जब नॉमिनी यहाँ पर कंसेंट को विड्रॉ करता है तो नॉमिनी ने यहाँ पर क्या देना है? नॉमिनी ने नोटिस देना है बेटा दोनों को, यानी कि कंपनी को भी नोटिस देना है और मेंबर को भी नोटिस देना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर मेंबर ने नए नॉमिनी को अपॉइंट करना है और नए नॉमिनी से कंसेंट फॉर्म लेना है INC 4 के अंदर। और इसके अलावा जो ये INC 4 आया है इसको सबमिट करना पड़ता है बेटा, कंपनी को मिला तो इसको सबमिट करते हैं अपन ROC को। अगला, व्हाट डज द चेंज ऑफ नॉमिनी MOA को इंपैक्ट करता है क्या? नहीं सर, ये चेंज ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाता। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इसको माना जाता है। अगला, कैन डैन
own another OPC while he still being a member of Dan Technologies OPC। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि सर ये दूसरे जगह क्या नहीं हो सकता, दूसरे जगह मेंबर नहीं रह सकता। एक पर्सन एक जगह मेंबर और एक जगह नॉमिनी रह सकता है, पर ये बोल रहा है डैन जो है ना वो एक ओपीसी में ऑलरेडी मेंबर है, अब इसको एक और ओपीसी में मेंबर करना है, तो ऐसे उटपटांग चीजें कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता, बस ऐसा इसका मतलब है। ओके, अगला अब देखो, नो व्हीकल्स आर अलाउड इन द पार्क। Comment on the statement explaining the concept of construction in the legal interpretation. Mention its significance in determining the legal interpretation. अब देखो क्या बोल के रखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर बोल के रखा है नो व्हीकल्स आर अलाउड इन दी पार्क। मतलब इनका कहना है सर पार्क के अंदर कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो, पार्क के अंदर कोई भी व्हीकल्स। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको कमेंट करना है जिसमें आपको कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना है इन लीगल इंटरप्रिटेशन, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइनिंग लीगल इंटरप्रिटेशन। अब देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा अर्थ ये होता है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन ट्रू मीनिंग या इंटेंशन बिहाइंड द लीगल स्टैट्यूट डॉक्यूमेंट अपन लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर निकालना चाहते हैं। मतलब ये जो लिटरल टेक्स्ट या लिटरल जो मतलब चीजें दी होती है उससे भी आगे जाके सोचना और बाकी रेलेवेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना, वो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है। मतलब बेसिकली इससे सर कोर्ट और प्रोफेशनल को मदद मिलती है कि जो भी एम्बिग्यूटीज है उसको ये लोग क्या कर सके, अवॉइड कर सके। अब सर नो व्हीकल्स अलाउड इन द पार्क का स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे कि कोई भी हो सकता है इसके अंदर, मोटर व्हीकल हो गई, बाकी कुछ भी हो गया, ये सब चीजें पार्क के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन सर कोर्ट इसका एक्चुअल चीजें देखना चाहेंगे, वो चाहते हैं कि इसके पीछे पोल्यूशन ना हो, समझ रहे बात को, या कुछ बाकी चीजें खराब ना हो करके, तो इसलिए वो चाहेंगे कि मोटराइज व्हीकल जो है, ऑटो, पता चला पार्क के अंदर कोई ऑटो लेके घुस गया, सलमान भाई हो गए तो गाड़ी लेके घुस गए बेटा, तो ऐसा थोड़ी चाहिए। आप समझना बात को, इनका कहना है कि सर आप एक बार का वो बच्चे जिसमें बैठ के वो चलाते हैं या छोटी सी साइकिल हो गई वो सब लेके आ रहे, तो चलो एक बार के चौके, मतलब उनको पोल्यूशन नहीं चाहिए पार्क के अंदर, वो ये बेसिकली इसका मतलब निकालना चाहते है, और आपको भी इसका मतलब ऐसा ही निकालना है, ठीक है। ओके, अब सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ सर, ये लेजिस्लेटिव इंटेंट को, कि क्या आखिर चाहता है लॉ मेकर, उसके इंटेंट को क्लैरिफाई करता है। दूसरा, अगर कोई कंफ्यूजन या कोई एम्बिग्यूटी होती है उसको सॉल्व करता है। तीसरा, जस्टिस इंश्योर कराता है पब्लिक को। और चौथा, यहाँ पे अडेप्ट करता है लॉ टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलते जाएंगे बेटे उस हिसाब से यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने मीनिंग को वेरी करते रहता है। क्या ये सब मीनिंग को वेरी करता है, ठीक है। अगला देखो, Moringa Limited initially issued preference share with a fixed 10% dividend. Later, company decided to reduce dividend rate to 8% as company's profit margin declined in last 2 quarters. Some preference shareholders opposed this change, arguing their right being altered unfairly. The company, however, claimed that the change was valid under the AOA. Will Moringa Limited will be able to proceed the change? What legal provision under the Companies Act such the variation of shareholders right and what procedure requirement must be followed, ऐसा यहाँ पर बोल रखा है। अब देखो सर कंपनी के अंदर मेनली क्या होता है सर, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, पर इनके पास प्रायोरिटी होती है डिविडेंड को लेके और दूसरा वाइंडिंग अप के समय रीपेमेंट को लेके। अब सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है कि सर कंपनी जो है वो मॉडिफाई या अल्टर करती है अगर किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर्स को, तो टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी, तो ऐसे केस के अंदर चाहे तो कंपनी कर सकती है। बट पहला पॉइंट इसके अंदर बोल के रखा है कि आपके एओए ने परमिशन देनी चाहिए और एमओए ने इसको मना नहीं करना चाहिए वेरिएशंस को। दूसरा पॉइंट बोल के रखा है कि आपको रिटर्न में कंसेंट लाना है। क्या करना है बोलो, आपको रिटर्न में कंसेंट ऑब्टेन करना है, कम से कम एटलीस्ट 75%। क्या कहा मैंने बोलो, मिनिमम 75% ऑफ द इशूड क्लास, जो आपकी इशूड क्लास है ना सर, उसका मिनिमम 75% आपको यहां पर लेना है, ठीक है। तीसरा यहां पर बोल के रखा है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, या आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। फिर चौथा क्या बोल के रखा है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन या 3/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। क्या कहा मैंने बोलो, 3/4 ऑफ मेंबर्स भी सर, अगर मान लो चेंज इन प्रेफरेंस है, चेंज इन इक्विटी भी अफेक्ट होता है, तो उस केस के अंदर आपको इक्विटी वालों का भी 3/4 का परमिशन लगेगा क्या, बिल्कुल। इसके साथ साथ मिनिमम 10%,
जो खुश नहीं है बेटा इस कंसेंट से, वो क्या कर सकते हैं, वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं और ट्राइब्यूनल जो वेरिएशन को इफेक्ट देगा वो वेरिएशन को फाइनल माना जाएगा क्या? हाँ सर, फाइनल माना जाएगा। मतलब कि सर अगर इनको 10 से 8% करना है तो इतना आसान है क्या? नहीं सर, इतना आसान नहीं है। इस तरीके से डिसीजन लेंगे और फिर फाइनली जो ट्राइब्यूनल कहता है अगर 10% अप्लाई करे तो ट्राइब्यूनल की बात एब्सोल्युटली फाइनल मानी जाएंगी क्या? यस सर, फाइनल मानी जाएंगी। डन है क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बताओ मुझे, है ना? यस सर। आओ आओ आओ, ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, सारे लोग देखिए यहाँ पर क्या बी पॉइंट। अब देखो, एनालाइजिंग द रोल एंड लाइबिलिटीज ऑफ डीपी इन द एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट। In an LLP where all partners are body corporate, can body corporate be appointed as DP? तो मैं आपको बता दूं, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट बॉडी को आप डीपी अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा, क्या होते हैं बोलो, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनको आप अपॉइंट कर सकते हो क्या? यस सर, मतलब इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे आप उनको अपॉइंट कर पाएंगे। दूसरा, इफ एन एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई डीपी वेदर एलएलपी कैन बी वैलिडली फॉर्म्ड विदाउट एनी डीपी अंडर द एलएलपी एक्ट। तो मुझे बताइए, क्या आप यहां पर बना सकते हो क्या? तो मैं आपको बता दूं, कंपनी को बना एलएलपी को बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स एंड उसके साथ साथ कम से कम एटलीस्ट 2 डीपी होना चाहिए। अब अगर 2 डीपी नहीं है तो इस सिचुएशन के अंदर क्या वो बना सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं सर, वो नहीं बना सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इन इंडिया इज प्लानिंग टू रिलोकेट परमानेंटली टू अनदर कंट्री। सर अगर वो परमानेंटली अगर कोई पर्सन शिफ्ट हो रहा है तो क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा क्या? नहीं सर, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। तो इस केस के अंदर समझना बात को, इस केस के अंदर सर मतलब यहां पर कोई मतलब वो कंडीशन फुलफिल होंगी क्या? नहीं सर, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी। समझ रहे क्या बात को? अगला, XYZ LLP was penalized for non-compliance, but one of the DP claims he was unaware of the regulatory framework। बहुत ही हो गए तो, है ना? देखो सर, डीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने कंप्लायंस करना चाहिए एलएलपी को लेके, अगर वो फेल हो जाता है तो डीपी की पर्सनल लाइबिलिटी रहती है और सर वो हो सकता है फाइन या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता है जो भी वायलेशन ऑफ एलएलपी एक्ट हो। तो इसका मतलब अगर डीपी को नहीं पता है तो वो इसके पीछे शेल्टर नहीं ले सकता। ओ मुझे तो पता ही नहीं था करके मुझसे मिस्टेक हो गई। भाई साहब, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप उसके लिए लायबल रहोगे क्या? हाँ सर, आप उसके लिए लायबल रहोगे। अगला, Mrs. Mona, employed in X1 Corporation, adopted three month old baby, applied for the maternity leave। ठीक है, ओके। Under the company's policy, which provided 26 weeks paid maternity leave. However, her employer rejected the request, stating that maternity leaves applies only to biological mothers as per law. Mona approached the court against the company's decision. In the related above cases, explain how rule of beneficial construction can be applied and interpreted as per the welfare legislation। भाई साहब, कहाँ से लाते हैं, मेरे को तो कभी कभार समझ में नहीं आता, है ना? इंस्टीट्यूट इतने अच्छे सवाल बेटा, अगर ये लोग काय में ऐसे एग्जाम में पूछे तो सवाल, एग्जाम में वही घिसे पीटे वही सवाल पूछ रहे, ये ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे इंस्टीट्यूट। ये सवाल सिर्फ एमटीपी में आरटीपी में बस यही डालेंगे। बेचारा बच्चा मेहनत कर करके पढ़ रहा है, उसको देख के जा रहा है और एग्जाम में वही 2-3 अटेम्प्ट पुराने वही सवाल पूछते रहेंगे बार बार घिसे पिटे। अच्छा है, अपना क्या जा रहा है? अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है सर? ये एक जुडिशियल अप्रोच है जिससे इंटरप्रीट किया जाता है स्टैट्यू को इन द बेस्ट सर्व्स फॉर द इंटेंडेड, मतलब किस तरीके से अपने इंटेंडेड पर्पस सर्व हो जाए उसको बेस्ट तरीके से देखा जाता है। पर्टिकुलरली समझना बात को, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद द वेलफेयर लेजिस्लेशन, ये मेयरली मतलब एकदम मेयरली ये चीज करता है किसके ऊपर? वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है क्या? हाँ सर, वेलफेयर लेजिस्लेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अब देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, आप इसको यहाँ पर कोर्ट इंटरप्रेट करती है कि मैक्सिमम क्लास ऑफ पीपल तक इसका बेनिफिट पहुंचे, है ना? अब देखो, अब यहाँ पर क्या मैं अगर बताऊं यहाँ पर, तो एक्चुअल में अगर आप इसको चेक करेंगे तो जिस हिसाब से मैटरनिटी लीव होती है ये तो बायोलॉजिकल मदर को ही मिलनी चाहिए, पर ये कहता है, ये क्या कहता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मैटरनिटी लीव ये जनरली उस वुमेन को दी जाती है जो रिकवर करती है चाइल्ड बर्थ से और न्यू बॉर्न की केयर करे करके। मेनी लॉज यहाँ पर जो जैसे इंडिया हो गया और बाकी ऐसे बहुत से देश है जहाँ पे पेड मैटरनिटी लीव मिलती है,
और इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन केवल बायोलॉजिकल मदर्स को जाता है। पर अगर ये तो एक अनफेयर डिसएडवांटेज हो गया ना, वो मदर जो बेटा अडेप्ट मतलब जो अडॉप्ट करती है बेबी को, तो सीधी सी बात है उनको मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ बॉन्ड देने के लिए यहाँ पर या बॉन्ड मिलने के लिए ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा। तो सही मायने में देखे तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहता है कि इनको भी क्या मिलना चाहिए सर, इनको भी उसका फायदा मिलना चाहिए करके, है ना। थोड़ा सा ऐसे सवाल आ जाए ना, थोड़ा डिस्प्यूटेड कैटेगरी आ जाती है ना। यस आओ अब देखो क्या, अब देखो कोट सर यहाँ पे कैसे लगाता है, देखिए पर्पस ओवर लिटरल मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि सर सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पर जो है ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लिटरल मीनिंग को इंटरप्रेट करना। हम यहाँ पर चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव मदर के बीच में, मतलब उनको लॉ ऐसा अलग कैटेगरी फील नहीं कराना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी क्या रूल अप्लाई होना चाहिए क्या, यस मतलब कोर्ट का ऑर्डर क्या अडॉप्टिव मदर के पीछे रहेगा क्या, बिल्कुल सर उनके फेवर में डेफिनेटली रहने वाला है। ठीक है ओके सर अगला देखो क्या, फिफ्थ का ए, एनर्जी मिल्स लिमिटेड हैज इशूड इक्विटी शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। मिस्टर अमित एंड मिस्टर बुरमन आर बोथ फ्रेंड्स। ठीक है तो देखो क्या बोला, एनर्जी मिल्स लिमिटेड हैज इशूड इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10 पर शेयर। Mr. Amit and Burman both are friends. Mr. Amit holds 1000 fully paid up share 10 per share while Burman holds 1000 partly paid up share that is 5 per share. When company declares dividend of 10%, a dispute arises and Burman expects same dividend as amount to Amit. However, company insists on paying dividends based on actual paid up value as mentioned in AOA. तो बेटा AOA के अंदर बोल के रखा है तो पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड दिया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल दिया जाता है। ठीक है ओके अगला, इन द लाइट ऑफ द अबव आपको यहां पर बताना है लीगल पोजीशन, whether company's decision to distribute dividend based on the paid up amount is legally valid. However क्या बोला यहां पर बोलो, however समझना, however does the company's 2013 regulate dividend distribution in such cases। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर अमित को 1000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और इसको 500 रुपए का मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सेक्शन नंबर 51 जो है ना कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर एओए प्रोवाइड करता है तो कंपनी जो है डिविडेंड वो किसके ऊपर दे सकती है, पेड अप वैल्यू के ऊपर भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ऐसा सेक्शन नंबर 51 कहता है। कौन कहता है बोलो, ऐसा सेक्शन नंबर 51 कहता है। तो एओए अगर अलाउ करता है तो डेफिनेटली सर यहां पर दिया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आप डिविडेंड को यहां पर इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है उनका डिविडेंड फिक्स रेट से जाता है। व्हाट रोल डज एओए प्लेस इन डिटरमाइनिंग द सिचुएशन। तो सिंपल सी बात है, अगर एओए साइलेंट होता है बेटा, मान लो अगर एओए कुछ नहीं कहता है, तो एओए कुछ नहीं कहता है तो जो डिविडेंड है ना वो दिया जाता है किसके ऊपर, वो डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर। सर डिविडेंड अगर लेकिन एओए कहता है तो डिविडेंड जो ये दिया जाता है पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर, किसके ऊपर बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर। डन है क्या, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, डन 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 है क्या, बोलो बोलो बोलो। अगला देखो, अगला पॉइंट देखो बी वाला पॉइंट, सभी लोग देखो बी वाला पॉइंट। चलो अब देखो क्या, आधार लिमिटेड एंड मित्तल लिमिटेड both took loans from different banks and provided security against them. आधार लिमिटेड मॉर्गेज इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी, ओ हो, ठीक है, बोथ टुक लोन्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। आधार लिमिटेड ने यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी दिया, वाइल मित्तल लिमिटेड प्लेज स्टॉक इन ट्रेड रॉ मटेरियल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको बोला जाता है फिक्स चार्ज, इसको बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है ओके, स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन बोथ केसेस। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, मस्त पूछा इन्होंने, इजी सवाल है ऐसा। जस्टिफाई योर आंसर विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और ऑल्सो एनालाइज, अगर कंपनी यहाँ पर रीपे करना फिक्स मतलब रीपे नहीं कर पाती है लोन को तो क्या होगा, अरे बड़ा इजी है सर। सबसे पहला तो चार्ज जो है ये फिक्स या फ्लोटिंग हो सकता है। स्पेसिफिक चार्ज फिक्स असेट्स के ऊपर क्रिएट होता है सर, ये जनरली जो असेट्स है वो परमानेंट नेचर के होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रीमाइसेस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो असेट से बेटा ये पहले ही आइडेंटिफाई होते हैं जिस समय चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, ये सर मॉर्गेज के कारण या मॉर्गेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के कारण यहां पर चार्ज क्रिएट होता है। ओके,
इसके साथ साथ जब चार्ज क्रिएट किया जा रहा है सर, तो बोला जाता है कि जो बोरोइंग कंपनी है वो इन असेट्स को बेच नहीं सकती है। अगर बेचना है तो आपको चार्ज होल्डर की क्या लगेंगी, परमिशन लगेंगी। सर फ्लोटिंग चार्ज मतलब ये ऐसे क्लास ऑफ असेट्स के ऊपर क्रिएट होता है जो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, जैसे रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ये सारी चीजों के ऊपर क्लियर होता है। सर ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ना, ये क्या होता है सर, जनरली ये कीप्स ऑन चेंजिंग, इस बात का ध्यान रखना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये जो है ना, ये बदलते रहता है, ये स्टेबल रहता है क्या, ना मुन्ना ना, ये बदलते रहता है। ठीक है, अब गिवन सिनेरियो के केस में जो आधार ने किया वो क्या था, फिक्स चार्ज था, और जो किसने किया, जो दूसरा मित्तल ने किया, वो फ्लोटिंग चार्ज था। अब मान लो सर इस केस के अंदर अगर कंपनी फेल कर जाती है लोन को रीपे करने से, तो ये जो असेट्स है आधार लिमिटेड के, वो बेचे जाएंगे और कंपनी अपने पैसे को क्या करती है बेटा, रिकवर करती है। पर फ्लोटिंग चार्ज के अंदर अगर मान लो कंपनी यहां पर पैसों को नहीं दे पाती है, तो इस केस के अंदर फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब कि वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद बैंक कंट्रोल ले लेंगी असेट्स का और असेट्स को बेच देंगे और अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। क्या, यस सर, पैसे को रिकवर कर लेंगे। तो आपका ये जो डिविडेंड वाला चैप्टर, सॉरी चार्ज वाला चैप्टर है, चैप्टर 6, उसके दूसरे पेज के ऊपर ही पूरा कंटेंट लिखा हुआ है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग से रिलेटेड। ठीक है, आइए अब देखो सी पॉइंट। मिस्टर पी रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कब, 23-24। ही लेफ्ट इंडिया on 15 July 24 for Switzerland for pursuing higher studies in biotechnology for 2 years। मतलब ये PROI हो गया। What would be residential status इन 24-25 एंड 25-26? तो 24-25 में क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ सर, पीआरओआई होने वाला है। और सर उसके बाद भी क्या रहने वाला है यहां पर, उसके बाद भी पीआरओआई रहने वाला है। ठीक है, ओके। अब मिस्टर पी रिक्वायर्स एवरी ईयर यूएसडी 25,000 फॉर ट्यूशन फीस, यूएसडी 30,000 फॉर इंसिडेंटल एंड स्टे एक्सपेंसेस। इज इट पॉसिबल फॉर मिस्टर पी टू गेट रिक्वायर? यस। अब ये तो यार 55,000 ही तो चाहिए, तो ये एलआरएस स्कीम के अंदर तो वैसे भी अलाउड होता है। फिर इसके अलावा गिव योर आंसर एज पर फेमा। तो देखो सबसे पहले तो अब पीआरआई का मतलब क्या होता है, पीआरआई मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। हाउएवर सर इसमें इंक्लूड नहीं होते वो पर्सन जो गॉन आउट ऑफ इंडिया, जो स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट या एनी अदर पर्पस जहां पे अनसर्टन स्टे हो। अब ऐसे केस के अंदर पी यहाँ पर 15/7 को गया हायर स्टडीज के लिए, पर आरबीआई ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बच्चों को जो बाहर पढ़ने जाएंगे उनको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, उनको हम लोग नॉन रेसिडेंट यानी कि पीआरओआई ट्रीट करेंगे। क्या, यस सर, पीआरओआई यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको पीआरआई ट्रीट करेंगे कब तक, बोलो जल्दी से। तो देखो 16 जुलाई तक, है ना, एंड फ्रॉम 17 जुलाई सर उसको क्या किया जाता है, पीआरओआई ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वो 15 को लीव हुआ तो एक दिन का ट्रांजिशन देके 17 से अपन उसको पीआरओआई मानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ट्रांजिशन के बारे में कहीं पे भी इन्होंने नहीं देके रखा है अपने बुक के अंदर, ध्यान रखना, अपने बुक में कहीं पे भी नहीं देके रखा है इन्होंने। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, लेकिन लिखते वक्त ये लोग क्या करते हैं फॉलो, जो एक्चुअल में फॉलो होता है ना वो फॉलो करते हैं, पर बुक में कहीं नहीं देके रखेंगे, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 16 से या 15 से पीआरओआई, बिंदास बोल सकते हो। ठीक है ना, फिर भी क्योंकि अब है प्रोविजन, क्योंकि अब चीजें हैं और क्योंकि ये कभी कभार एमटीपी में सवाल दे देंगे, तो आप यहां पर मान लेना कि ट्रांजिशन प्रोविजन 2 दिन का होता है। ट्रांजिशन मतलब यहां से उड़ा वहां पहुंचा, स्टेबल होगा, 1 दिन लगेगा, तो इसलिए इन्होंने 17 से उसको क्या माना है, पीआरओआई मानते हैं। अब सीधी सी बात है 15 जुलाई को लेफ्ट हुआ था यहाँ पर, तो पी विल बी कंसिडर्ड क्या, है ना, आउटसाइड इंडिया। पी यहाँ पर पीआरओआई माना जाएगा क्या, हाँ सर पीआरओआई। तो अब देखो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ जब तक लीव किया तब तक पी आ रहा है और उसके बाद क्या माना जाता है, पीआरओआई माना जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके साथ साथ उसको जो पैसा चाहिए $2.5 लाख तक तो फ्रीली परमिसिबल होती है बेटा चीजें, तो ऐसे केस के अंदर क्या ये मांग सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है, और इसके लिए कोई भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डन 6 पॉइंट। अब देखो क्या, अभी लिमिटेड इज होल्डिंग एजीएम टू पास अ क्रूशियल रेजोल्यूशन रिगार्डिंग एक्सपांशन of its business operation। ठीक है, however many shareholders are unable to attend the meeting in person due to their prior commitments and engagements. Despite their absence, they still wish to express their views and participate in decision making process. Considering the provision of the Companies Act, how can these shareholders delegate voting rights and ensure participation in meeting without any physical presence? मतलब प्रॉक्सी के बारे में बात कर रहे होंगे ये लोग। ठीक है, आओ अगला,
और देखो क्या, व्हाट मैकेनिज्म आर अवेलेबल टू फैसिलिटेट सच इन्वॉल्वमेंट, और कौन से मैकेनिज्म यहाँ पर अवेलेबल है इस चीजों को फैसिलिटेट करवाने के लिए। तो देखो सर, शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन तो ठीक है, जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, पर सर जरूरी नहीं है कि हर बार शेयर होल्डर्स अटेंड कर पाए। तो ऐसे केस के अंदर सर यहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने पावर्स को, राइट टू वोट के पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं किसी अथराइज पर्सन को, जिसे प्रॉक्सी बोला जाता है एज पर सेक्शन 105। अब प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है सर, प्रॉक्सी का मतलब ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, जो एंटाइटल होता है वोट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर, और हर एक मेंबर जो एंटाइटल टू वोट है वो अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी को। सर एक बात ध्यान रखना, प्रॉक्सी कोई भी पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं है वो मेंबर हो, और इसका फॉर्म जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी है MGT 11 फॉर्म के अंदर होता है। सर इसको कम से कम 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग आपको सबमिट करना पड़ता है, जिसको प्रॉक्सी भी राइटिंग में साइन करता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल करता है। सर इसके अलावा अगर अपॉइंटर, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने वाला कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट पे कॉमन सील या ऑफिसर या अटॉर्नी की साइन होती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल होती है। अब जो भी नोटिस ऑफ मीटिंग है ना सर उसके अंदर, और प्रॉक्सी वगैरह, तो सर वहां पर मतलब नोटिस ऑफ द मीटिंग के अंदर इन्होंने पॉइंट डालना चाहिए कि अगर आप चाहो तो आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिसीजन लेना काफी आसान हो जाता है, या डिसीजन काफी फेयर तरीके से आता है जब प्रॉक्सी भी यहाँ पर वोट करते हैं। ओके, अगला, एक्सेल डिक्लेयर्ड द डिविडेंड 2015 बट सम शेयर होल्डर्स डिड नॉट क्लेम एज पर द कंपनीज एक्ट द अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर्ड was transferred to unpaid dividend account after the year 22, 7 साल हो गए, the unclaimed dividend was transferred to IEPF on the basis above the following question, define IEPF right amounts credited to IEPF। ठीक है, आओ, हाउ इज आईपीएफ यूटिलाइज, और स्टेप्स बताइए विक्टर यहाँ पर किस तरीके से क्लेम कर सकता है डिविडेंड को। तो आईपीएफ मतलब एक फंड है जो एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो भी अनपेड या अनक्लेम्ड अमाउंट है वो उसके अंदर डाला जाता है क्या, बिल्कुल डाला जाता है। तो क्या क्या चीजें आती है, जैसे अनपेड डिविडेंड जो 7 साल तक क्लेम नहीं हुए, मैच्योर्ड डिपॉजिट और उसके ऊपर का ब्याज जो 7 साल तक क्लेम नहीं हुए, फ्रैक्शनल शेयर जो बोनस या मर्जर के और वो 7 साल तक क्लेम नहीं हुए, एप्लीकेशन मनी आया उसको अपन ने अलॉट नहीं किया, रिफंड करना है बट वो 7 साल तक रिफंड क्लेम नहीं हुआ, तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, आईपीएफ में डाल दिया जाता है। फिर आईपीएफ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी डोनेशन दे सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आईपीएफ में आती है। इसको यूटिलाइज किसके लिए किया जाता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा इन्वेस्टर्स के एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, फिर अगर डिस्गॉर्ज मतलब किसी को नुकसान हुआ है किसी पर्सन के द्वारा, तो उसको पे करने के लिए, उसके नुकसान भरपाई करने के लिए भी यहाँ पर चीजें किया जाता है। अब सर विक्टर यहाँ पर कैसे क्लेम कर सकता है, तो वो अप्लाई कर सकता है आईपीएफ अथॉरिटी के ऑन फॉर्म IPF 5 है ना, IPF 5 फॉर्म नंबर है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, और सबमिशन करने के बाद अथॉरिटी वेरिफिकेशन करेंगे और आपको अपना पैसा लौटा देंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल लौटा देंगे। ठीक है, अब देखो अगला, एग्जामाइन द फॉलोइंग सिचुएशन इन फीमा। LMN लिमिटेड had total foreign exchange earning of USD 600 million in last 3 years. Okay, what is the maximum amount company can donate विदाउट RBI अप्रूवल। तो सर कितना यहां पर कर सकते हैं, तो देखो 1% ऑफ अर्निंग्स यानी कि सर कितना हो गया, 600 मिलियन का होगा 6 मिलियन है ना, और इसके अलावा और यूएसडी और कितना होगा यहाँ पर, यूएसडी 5 मिलियन है ना, यूएसडी, यस यूएसडी 5 मिलियन, विच एवर इज लेस यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ऐसे केस के अंदर सर कितना हुआ यहाँ पर, बोलो जल्दी से मुझे सर, इसके अंदर केस के अंदर 5 मिलियन होने वाला है, तो 5 मिलियन तक आप विदाउट अप्रूवल, 5 मिलियन मतलब 50 लाख हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हो सर, विदाउट अप्रूवल यहाँ पर चीजें कर सकते हो, $50 लाख। ठीक है, और ये $6 मिलियन, 6 मिलियन मतलब $60 लाख, तो दोनों में से जो लो कौन है, 50 लाख, तो ऐसे केस में आप 50 लाख तक विदाउट अप्रूवल कर सकते हो। अगला, STU लिमिटेड has a foreign exchange earning of $250 million over last 3 financial year। ये प्लान टू डोनेट करता है 3 मिलियन टू यूनिवर्सिटी फंड, क्या यहाँ पर अप्रूवल है क्या, तो देखो सर 1% ऑफ 250 मिलियन कितना होगा, 2.5 मिलियन, मतलब कहीं ना कहीं मैं 25 है ना, 25 लाख रुपए बोल सकता हूँ क्या, अरे बोलो ना, 25 लाख रुपए बोल सकता हूँ क्या, हाँ सर बोल सकते हैं। इसके अलावा और फिर क्या बोल के रखा है यहाँ पर, और इसके अलावा जो मतलब सिंपल सी बात है 25 लाख, तो मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया आरबीआई अप्रूवल के, 25 लाख। अब ये दे कितना रहा है बेटा, 30 लाख दे रहा है, तो क्या अप्रूवल लगेगा क्या, 100% सर अप्रूवल यहाँ पर लगने वाला है। डन है क्या, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई क्या, एकदम इजी इजी, यस।
तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, यहाँ पर आपका MTP1 हो जाता है, MTP2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद मैं MTP1 का वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए और MTP1 को भी शूट कर लूंगा। सर MTP2 बना दिए, 1 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 2 की PDF मुझे पहले मिल गई थी बच्चों से, अब 1 की PDF पेंडिंग थी तो बाद में वो मुझे मिल चुकी है। अब ठीक है, तो मैं 1 का भी वीडियो बना दूंगा और उसको 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस, आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन, सारी चीजें आप लोगों के लिए रेडी है बेटा। आपको igsir.in के ऊपर जाना है, इस वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे देखो फ्री रिसोर्सेस का टैब दिखेगा, इस पे क्लिक कर लो। फिर इसके बाद आप जाएंगे सीए इंटर लॉ में, तो यहाँ पर रिवीजन वीडियोस है, यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है, आरटीपी एमटीपी है, इधर एमसीक्यू है, आईसीआई के जो केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज आए वो भी यहाँ पर है, लाइव टेस्ट मैंने कंडक्ट कर रखा हूं, सब कुछ चीजें यहाँ पर एकदम बढ़िया से अवेलेबल है, जरूर से इसका फायदा लीजिए। राइट, होप सो आप सभी को एकदम बढ़िया से मजा आया होगा बेटा, है ना। जरूर से अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिएगा हमारे क्लासेस के बारे में। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का लॉ मैं आपको पढ़ाता हूँ ultimatece.com पे, और सीए इंटर का ऑडिट मैं आपको पढ़ाता हूँ igsir.in के ऊपर हमारी क्लासेस होती है। राइट, तो igsir.in के ऊपर मेरी ऑडिट की क्लासेस होती है। राइट, चलिए, यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।